So let us start. So what is binary operation? बताइए क्या बताया था? Anyone? Any function from a cross a to a, है ना? Any function from this where a is any non-empty set. This is called binary operation. In short, I can write BO. So this was a binary operation. So like if you are taking set of real numbers, this capital R means set of real numbers, and I am taking usual addition or usual multiplication. So these all are binary operation. You know this thing. Take any two real number, 2 plus 2.5. So one element is coming from this, second element from this. So the resultant will be also, this also belongs to the set R. So this is from R cross R to R. And similarly, you can take product also. 2 into 3, this will be 6. So these are the basic binary operation, usual addition and usual multiplication. But it depends on the set also. Like if you take set of even numbers, I told you, set of even numbers, you have what? 2, 4, 6 and so on. Suppose I am taking positive. ना बटन ऑन करो इसका और पेज पेयर लगा लेना या रफ पेज पे निकाल लो अभी. Okay, so here your addition will be what? Usual addition. This is a binary operation. Yes, no? Yes, sir. And multiplication also. Dot लिख लो या ऐसे लिख लो चलो. This is also a binary operation, है ना? Product of two even number is again an even number. But if I am taking set of odd positive integers 1, 3, 5 and so on, so you know here that addition is not binary operation. It is not binary operation because I am taking two elements, but the sum does not belongs to O. Okay, but product is binary operation. 3 into 5 is 15. It is again a binary. This belong. Sorry, it is against belongs to O. So this is a binary operation. ठीक है? Yes, sir. चलो तो there are some special type of binary operation you can check. इसमें सबसे नीचे है blank, इसी में नीचे सबसे नीचे है. So like you can have. सर कोई ज्वाइन होना चाह रहा है सर. क्लास में एक्सेप्ट कर लिया सर, कुछ लड़के ज्वाइन होना चाह रहे हैं. कर तो रहे हैं, एडमिट ऑल कर दिया. वो अभी धीरे धीरे आ रहा है, शायद हो सकता है. मैंने तो एडमिट ऑल कर देता हूँ सबको. वो धीरे धीरे हो रहा है अभी. मे बी नेट प्रॉब्लम होगी कुछ. अगर आप वुडन ब्लॉक मेजर करता है 24 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, किस शेप में है वुडन ब्लॉक? गुड. कितने क्यूबिकल बॉक्स आएंगे, कैसे निकालेंगे? क्यूबाइड का वॉल्यूम निकाल के क्यूब के वॉल्यूम से. पढ़ लो भाई, साकिब खान साहब आप पढ़ा रहे हो इस टाइम है. म्यूट कर लीजिए अपना माइक. यस यस उज्जवल वाशने. जल्दी से वो गया सर. ठीक है चलिए म्यूट करिए. So in this way we can see that these are some binary operations, है ना? और I can check like this. एक एग्जाम्पल था आपका, ये एग्जाम्पल 1.47 f(x, y) is equal to x plus y minus xy.
Okay, so here you can check whether it is binary operation or not. So here अब ये डिपेंड करेगा सेट क्या है. तो it is given that it is binary operation, it is binary operation over set of complex numbers C, है ना, ये C हम set of complex numbers है, over R set of real numbers, over Q set of rational numbers, over Z set of integers, but not binary operation on set of natural numbers, है ना. देखो, if something you want to discard, you can discard by a single example. किसी भी एग्जाम्पल से आप डिस्कार्ड कर सकते हैं. बट इफ यू वांट टू प्रूव, तो यू कैन नॉट टेक एन एग्जाम्पल टू प्रूव समथिंग, है ना, ये ध्यान रखना है. तो अगर हमें डिस्कार्ड करना है तो हम यहाँ पे कोई 2 नंबर्स लेके इसे डिस्कार्ड कर सकते हैं. इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन. ओके भाई, हमें अगर ये शो करना है इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, तो क्या करूं, मुझे ऐसा कुछ नंबर लेना होगा कि जिसका डिफरेंस जो है नेगेटिव आ जाए तो डिस्कार्ड हो जाएगा. बताइए क्या नंबर चूज करूं मैं. 2 3 सर. Yes. If I am taking 2, 3, you know, 2 plus 3 minus 2 into 3. So it will become 5 minus 6, which is minus 1, and which is of course does not belongs to set of natural numbers. So here in this way I can discard it. Okay. So that means it is not a binary operation. But remember, if you want to prove, you have to prove in a general way. You cannot prove by taking single example. You have to prove it by taking a general way, you know. So for example, I am taking one more example. Suppose सर 1,1 अगर लेंगे तो 0 हो जाएगा. हाँ, 1, तो 1 वो 0 भी हो जाएगा. वो भी ले सकते हैं. लेकिन वो तो आपको 0 अगर हो जाएगा तो वो भी ले सकते हो. मैंने कहा ना, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं फॉर डिस्कार्डिंग समथिंग, है ना. ये भी है. तो वन एग्जाम्पल इज इनफ टू डिस्कार्ड समथिंग बिकॉज दिस डेफिनेशन होल्ड्स फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑन द सेट. जैसे अब आपका रियल है, इफ यू वांट टू शो दिस थिंग फॉर सम रियल नंबर, सपोज आई वांट टू शो. सर नहीं होगा सर, नहीं होगा सर. 2 minus 1 1 हो जाएगा. गलत बता 1 दिया. आएगा सर. 1. चलो 1 आ जाएगा, ठीक है, चलो, है ना. तो बिलोंग्स कर रहा है. लेकिन यू कैन गेट सो मेनी नंबर्स. यही 2, 3 नहीं है. जब भी आपका ये डिफरेंस बड़ा हो रहा होगा, है ना, इट विल ऑलवेज डज नॉट बिलोंग्स टू n. वो आप सोच सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स. यस सर. द पॉइंट इज, इफ यू वांट टू शो दिस थिंग, तो आई कैन नॉट अप्लाई दिस एग्जांपल फॉर्मूला, है ना. क्योंकि इट हैपेंस कि कोई चीज मान लो 1 लाख एग्जांपल्स के लिए होल्ड हो रही हो, लेकिन 1,01,000 के लिए नहीं हो रही हो. सो इफ यू वांट टू शो समथिंग, यू हैव टू टेक अ जनरल वे. सपोज आई वांट टू शो दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ओवर अ रियल नंबर. So how you will show it? I will take, let a comma b belongs to R, any arbitrary. You have to take any arbitrary number, है ना. यहाँ पर आप 1 2 नहीं लेंगे. अब आप प्रॉब्लम लगाएंगे f of a comma b is equal to a plus b minus ab. Now we know that sum of two real numbers is again a real number, है ना. And we know that product of two real number is again a real number. ये आपको लॉजिक देना होगा. And difference of two real numbers is again a real number, है ना. ये बात आप लिखेंगे. तो hence a plus b minus ab belongs to R. ऐसे आप प्रूफ करेंगे. इसे ध्यान रखना है जब भी प्रूफ करने के लिए आएगा, बिकॉज इन दिस पेपर यू हैव सो मेनी थिंग्स टू प्रूव, है ना. यहाँ पर आप ये नहीं लेंगे साहब मैं a को 1.1 ले लूं और b को 2 ले लूं, है ना. ऐसे आप प्रूफ नहीं करेंगे, ध्यान रखना है. दिस इज द वे ओनली व्हेन यू वांट टू डिस्कार्ड समथिंग. प्रूविंग के लिए यू हैव टू टेक अ आर्बिट्रेरी अप्रोच, आर्बिट्रेरी नंबर. ऐसे c के लिए कर सकते हैं, q के लिए कर सकते हैं, व्हाटएवर. कीप इन माइंड. तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे जो आप चेक कर सकते हैं. देन वी हैव सम स्पेशल ऑपरेशंस. नेक्स्ट थिंग इज, है ना, which is called commutative. Commutative क्या होता है? Next definition, commutative.
बताइए। अ बाइनरी ऑपरेशन ऑर्डर। इज, हाँ सपोज इसको मैंने आपको बताया था कि दिस एस्ट्रिक इज द नोटेशन, क्योंकि ये ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस डिवीजन, तो इन जनरल आई एम यूजिंग एस्ट्रिक नोटेशन। सो अ बाइनरी ऑपरेशन दिस ऑन सम सेट एस इज कॉम्यूटेटिव। कब होगा? इफ ए स्टार बी एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू बी स्टार है। बी स्टार बी ए स्टार ए फॉर ऑल ए बी इन ए, है ना, फॉर ऑल, कीप इन माइंड। कॉम बिलोंग टू ए। हाँ, ए है या एस, ए ले रहा हो तो ए लिख दो, यहाँ पे ए लिख दो, चलो जो भी सेट है आपका, अगर ए है तो ए, एस है तो एस। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन, है ना। तो यू नो कि यूजुअल एडिशन इट इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, कोई भी हम सेट ले ले। ये सब तो हमने 12th में ही पढ़ा था ना, फंक्शन में होता है जैसे रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव और सिमेट्रिक वाले केसेस होते हैं। तो वो जो आपके होते हैं वो आपकी रिलेशंस होती हैं, है ना। यहाँ पर जो है हम सर बाइनरी उसमें भी ऑपरेशन कुछ ऐसे पढ़ ही होता है ना? रहे हैं। जी अच्छा अच्छा। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो कॉम्यूटेटिव, है ना, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ये सब कॉम्यूटेटिव है। माइनस कॉम्यूटेटिव है क्या? माइनस साइन नहीं सर। नहीं सर। यू नो, यहाँ पता है आपको ये, है ना, नॉट कॉम्यूटेटिव। ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ऐसे डिवीजन, अगर मैं डिवीजन ले लूं, नॉट कॉम्यूटेटिव, यस। So in this way you can check commutativity, है ना, it is called commutativity. And similarly one more operation we have, associativity. One more definition, associativity. So this is associative next. Associativity, क्या है associativity बताइए भाई, anyone? सर जी ए सर। बी सी में Associativity सर ए प्लस सी प्लस मत बोलो, स्ट्रिंग बोलो। ऐसे इज इक्वल्स टू ए स्टार बी ए एस Yes, स्टार सी। स्टार से। yes, correct. Now I will have to take 3 elements, है ना, and remember for all A, B, C in A. So if this thing holds, then it is called associativity, है ना. These relations are important because I will be using this relation for defining vector space. So that's why I am discussing all these operations. So this is called associativity. Okay. सर ये प्रूव कैसे कर सकते हैं सर? इसको, हाँ सर। इसे अगर आपको प्रूव करना है तो आप जो है, ये ऑपरेशन है, इसे प्रूव कैसे करेंगे? तो ऑपरेशन डिफाइंड है इस तरीके से एक्चुअली, है ना, इट इज डिफाइंड इन दिस वे। तो which the thing which is defined we are not going to prove, है ना। एक ऑपरेशन है कि अगर ये होल्ड होगा तो वो एसोसिएटिव होगा, तो इट इज नॉट अ रिजल्ट, इट इज अ डेफिनेशन। ठीक है, हम चेक कर सकते हैं बस इसका इस्तेमाल करके, जैसे एडिशन है, हम चेक कर सकते हैं कि एडिशन एसोसिएटिव है कि नहीं, ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स या ओवर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओवर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हमें पता है कि यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन दे आर ऑलवेज एसोसिएटिव, है ना। कोई भी आप सेट ले लें, उसके 3 एलिमेंट लें, तो ये हमेशा होल्ड होगा, चाहे आप प्लस ले लें या मल्टीप्लिकेशन ले लें। यू नो, अगर मैं प्लस ले लूं तो 2 + 3 + 5 इज ऑलवेज इक्वल टू 2 + 3 + 5। ऐसे ही 2 × 3 × 5, ऐसे अगर हम ले लें, दिस विल इक्वल टू 2 × 3 × है ना। तो आई कैन चेक बिकॉज इट्स अ डेफिनेशन, है ना, बट इट इज नॉट ऑलवेज द केस। अब डिपेंड्स ऑल्सो कि हम क्या केस ले रहे हैं। अगर मैं माइनस साइन ले लूँ मान लीजिए, तो वो चेंज हो जाएगा, है ना। अगर मैं डिफाइंड ऐसे कर दूं कि a - b + c, तो इट विल नॉट बी एसोसिएटिव। तो इट डिपेंड्स। जैसे आपका एक ऑपरेशन है, ये 1.45 इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, fxy = x - y। देखिए, fxy = x - y, दिस इज द ऑपरेशन, है ना। तो ये ऑपरेशन अगर आप लें तो इट इज नॉट एसोसिएटिव। कॉम्यूटेटिव तो है ही नहीं हमारे पास, है ना, एसोसिएटिव भी नहीं है। क्यों? देखिए, जैसे अब मैं लूंगा a * b * c,
अब ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी, और फिर इसके बाद आप करेंगे इसको जो भी रिजल्टेंट आएगा उसको करेंगे माइनस सी, ये तो होगा। और अब आप अगर ले लें ए स्टार बी माइनस सी, इट मीन्स व्हाट, अगर मैं ए स्टार बी स्टार सी ले लूं, इट मीन्स ए माइनस बी माइनस सी, तो ये इक्वल है क्या आपस में? नो सर। इक्वल नहीं है भाई, यहाँ पर आपका ए माइनस बी वो सी आ जाएगा, आप नंबर लेके चेक कर सकते हो, कोई भी नंबर ले लें। सो हेयर द डिफरेंस इज नॉट कॉम्यूटेटिव एज वेल एज नॉट एसोसिएटिव, है ना। सिमिलरली यू कैन टेक x अपॉन y, डिवीजन ले लें अगर हम, है ना, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू x अपॉन y, बताइए इज इट कॉम्यूटेटिव, नो नो सर। सर। इज नो इट सर। इज इट एसोसिएटिव, नो सर। नो सर। नॉट होगा। एसोसिएटिव, है ना, नहीं होगा, ये आप चेक कर सकते हैं, हैं? क्या? सर लेकिन जैसे 1/1 है सिंगल केस सिनेरियो, जी जी, तो उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं 1/1 के लिए नहीं होना जैसे चाहिए ना। एक्स और वाई इक्वल जब रहेगा तब तो हो जाएगा। हाँ, नहीं तो हमें अगर एक केस भी मिल गया ना, इट शुड होल्ड फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ये तो डेफिनेशन लिखी है, यस सर। फॉर ऑल, दिस ओके फॉर सर। ऑल इज वेरी और इंपॉर्टेंट, होना चाहिए। है ना। देखो मैथमेटिक्स में जब व्हेनेवर यू आर डिफाइनिंग समथिंग इन मैथमेटिक्स, दीज इंपॉर्टेंट टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर ऑल, फॉर ईच। तो जब फॉर ऑल का मतलब ये हुआ कि अगर आपको 2 एलिमेंट मिल रहे हैं तो आई कैन नॉट से कि इट इज ट्रू, यू हैव टू टेक ऑल द एलिमेंट्स, है ना। तो इन जनरल यस इट सर। इज नॉट ट्रू, हो सकता है 50 100 150 के लिए हो जाए, बट इट विल नॉट ट्रू फॉर इनफाइनाइट मेनी नंबर्स आल्सो। तो 1/1 के लिए ट्रू होगा, 2/2 के लिए ट्रू हो जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट डिफरेंट नंबर्स, है ना। So whenever we are talking about, we will be talking in general way. So in this way you can check associativity and commutativity. ठीक है भाई, अब इसमें आपका प्रॉब्लम सेट 1.5 है बुक में, ये आपकी बुक, वेयर इज योर बुक, बुक, हाँ भाई, रिव्यू बुक आपकी मैं शेयर करता हूँ पेज ये। तो कुछ एक्सरसाइज है जो आपको ये करनी है। एक मिनट, ये बुक दिख रही है भाई शेयर में, अभी क्या दिखा है, व्हाइट बोर्ड है सर। अभी व्हाइट बोर्ड ही आ रहा है, अच्छा। न्यू शेयर में डालते हैं, अब आया। यस यस सर। सर। हाँ, Yes, sir. तो ये आपके बुक की सॉफ्ट कॉपी है, क्योंकि किसी समय का ये सब तो मैंने पोर्शन पढ़ा दिया है आपको। ये प्रॉब्लम सेट 1.5 है, देखिए। तो इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है, डिफाइन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन द सेट एस अल्फा बीटा गामा विद द हेल्प, एक टेबल बनाइए, देखिए, है ना, ये टेबल होती है, इट इज आल्सो कॉल्ड केली टेबल, CAYLEY, एक टेबल है ये। तो इसमें
ऊपर अल्फा बीटा गामा है, नीचे अल्फा बीटा गामा है। तो ये तो सेट के एलिमेंट्स होते हैं जो हम यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। ये जो कॉमन पार्ट है प्लस यहाँ पर हम लिखते हैं हमेशा ऑपरेशन। तो ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे ये अल्फा आया, तो ये अल्फा कब आएगा? व्हेन यू आर एडिंग अल्फा प्लस अल्फा देन अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इज बीटा, अल्फा प्लस गामा इज गामा। ठीक है, ये ऐसे टेबल बनती है, समझ में आया? तो ये जो एंट्री बीटा है, ये बीटा कब आएगी? बीटा प्लस अल्फा। यस। गामा कब आएगा? बीटा प्लस गामा। तो ये इट इज कॉल्ड केली टेबल, है ना? ऐसे इन्होंने एक टेबल 1.2 बनाई है, दे हैव कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। अल्फा क्रॉस अल्फा इज अल्फा, अल्फा क्रॉस बीटा इज अल्फा, अल्फा क्रॉस। तो इन्होंने डिफाइन करा है अपने तरीके से। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रूव दैट द बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन एज डिफाइंड बाय दिस टेबल आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू सी कि ये कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो जैसे हमने कम्यूटेटिव चेक करना है, तो मैंने आर्बिट्रेरी कोई एलिमेंट लिया, मान लीजिए, तो मैंने लिया अल्फा प्लस बीटा, कितना आया? बीटा। बीटा अब बीटा प्लस अल्फा लीजिए, बीटा प्लस अल्फा इज हाउ मच? बीटा। बीटा बीटा आ रहा है? हाँ, ये अल्फा प्लस गामा इज गामा और गामा प्लस अल्फा इज गामा, है ना? तो ये आपको दिख रहा है कि इट इज एसोसिएटिव। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं सारे एलिमेंट्स लेके, ज्यादा एलिमेंट्स नहीं है। ऐसे ही अगर आप एसोसिएटिव की बात करें तो आपको क्या लेना पड़ेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो पहले आपने लिया अल्फा प्लस बीटा, हाउ मच? बीटा, है ना? बीटा। अब आप लेंगे बीटा प्लस गामा, तो बीटा प्लस गामा इज हाउ मच? अल्फा। तो फाइनली क्या आया? अल्फा। अल्फा। अब आप राइट हैंड साइड में क्या था? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट में। तो पहले बीटा प्लस गामा ले लो, बीटा प्लस गामा इज हाउ मच? अल्फा, है ना? यस। और अल्फा प्लस अल्फा अल्फा। तो एसोसिएटिविटी आ रहा है, नहीं आ रहा है? हम्म। हाँ। तो इन दिस वे यू कैन सी कि दिस कैली टेबल ऐसे मल्टीप्लिकेशन के लिए कि दिस टेबल हैज बाइनरी ऑपरेशंस व्हिच आर एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव। ठीक। सेकंड प्रॉब्लम है, देखिए, एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है इन्होंने सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। तो पूछा है इन्होंने इज एस्ट्रिक इज कम्यूटेटिव, इज एसोसिएटिव। तो ये आप चेक करेंगे और बताएंगे, कर सकते हो इसे, है ना? तो यहाँ पर जब आपको इसे करना है तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पर 10-12 नंबर लेके नहीं कर सकते। हेयर यू हैव टू शो इट इन अ प्रॉपर वे। कैसे शो करेंगे इसे, देखिए ना, यहाँ पर ये नहीं होगा कि आप कोई नंबर ले लें, साहब 1,2 ले लूँ, मैं शो कर दूँ। क्योंकि whenever you have to prove, you have to check, you have to take arbitrary numbers. So I will take arbitrary numbers sum a b. देखिए यहाँ करता हूँ इस प्रॉब्लम को, है ना? So here operation is defined. It is your problem number 2 है, problem number 2 set page 19 पर है आपकी बुक में। So here you have operation x star y is equal to x y plus x plus y. So I want to check this binary operation is commutative and associative. ये मुझे चेक करना है ना, ये हमें पता नहीं है कि नहीं है। तो फर्स्टली आई एम टेकिंग एक्स स्टार वाई। अब देखो एक्स स्टार वाई है, जनरल ले लिया हमने, तो एक्स स्टार वाई तो आपका गिवन है, ये तो लिखा ही है ऊपर, है ना? वाई स्टार एक्स और चेक करता हूँ मैं, व्हाट अबाउट वाई स्टार एक्स? अगर आप वाई स्टार एक्स लिखेंगे तो क्या होगा बताइए? वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स। अब ये जो प्लस और मल्टीप्लीकेशन है, ये यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है, और हमें पता है कि यूजुअल एडिशन मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो हमेशा कम्यूटेटिव होता है ना? तो तो इसे वाई एक्स को मैं एक्स वाई लिख सकता हूँ, इस y प्लस एक्स को आई कैन राइट x प्लस वाई। तो इसका मतलब किसके इक्वल है? x स्टार y के। तो इसका मतलब इट इज कम्यूटेटिव, है ना? तो हमने जनरल वे में प्रूव करा। सिमिलरली नाउ आई विल टेक एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी के लिए आई हैव टू शो x स्टार y स्टार z, है ना? इज शुड इक्वल टू x स्टार y स्टार z। तो फर्स्टली आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या करेंगे, पहले हमेशा ब्रैकेट वाला पार्ट ओपन करते हैं। तो y स्टार प्लस z इज हाउ मच? yz प्लस y प्लस जेड प्लस z। ओके, अब देखिए, अब x स्टार में हमें ऑपरेशन लगाना है, ये वाला ध्यान रखना, ये वाला। तो क्या होगा, अभी ये सपोज करिए x इज वन एलिमेंट एंड दिस इज अनदर एलिमेंट। तो क्या होगा, पहला एलिमेंट क्या है? x इंटू वाई। तो x इंटू
y x z into y z plus y plus y z z plus y plus z प्लस फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट। plus second. ओके, अब यहाँ पर मैं यूजुअल मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, तो यह आपका हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स प्लस वाई जेड प्लस वाई प्लस जेड, है ना, ये निकल कर आ गया, सॉल्व हो गया ये। अब इस या तो यहीं पर अरेंजमेंट कर लो, या अगर अरेंजमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो राइट हैंड साइड उठा लो सीधा, है ना, या तो यहीं अरेंजमेंट कर दी जैसे हमने यहाँ किया था, लेकिन यहाँ पे आपके पास टर्म्स कम थे तो हमें इजीली दिख रहा था। अब यहाँ पर आपको अगर प्रॉब्लम हो, यहाँ तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वरना राइट हैंड साइड उठा लीजिए आपकी बार। तो नाउ इट विल हैपन एक्स स्टार वाई, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई एंड स्टार जेड। अब इसमें हमें वही ऑपरेशन लगाना है जो यहाँ लगाया था, तो देखो ये वही तो आएगा, ये तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपके पास एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, है ना, प्लस एक्स, एक्स का मतलब फर्स्ट टर्म अब ये है एक्स वाई प्लस वाई एंड प्लस जेड। अब अगर आप देखें तो यू हैव ऑल द टर्म सेम, देखिए एक्स वाई जेड है यहाँ पर, एक्स वाई जेड है ना, एक्स जेड टर्म आपका, वेयर इज योर एक्स जेड टर्म, दिस इज योर एक्स जेड टर्म, एक्स जेड वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो सेम टर्म्स हैं सारे, क्योंकि एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, तो ये इसी इक्विवेलेंट आ गया, तो हेंस दीज टू आर commutative इक्विवेलेंट, सो इट इज एसोसिएटिव। समझ में आ गई बात? Yes, So in sir. this way you can prove in a Yes. general way whenever you want to show in general. ये आपकी दो प्रॉब्लम्स थी इसमें, और कौन सी प्रॉब्लम है देखें, तो प्रॉब्लम 1.1 1 थी, और ये आपकी ये है ना, इसमें आगे प्रॉब्लम आप करना चाहें अपने आप ट्राई कर सकते हैं, मैंने 2-3 प्रॉब्लम्स करा दी हैं फॉर योर सेक ऑफ प्रैक्टिस, हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बाइनरी ऑपरेशन के एग्जांपल्स थे, और बाइनरी ऑपरेशन आपको मिल सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं, वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा, ठीक है भाई, करेंगे इसे। आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इसमें थर्ड प्रॉब्लम थी, ये आप खुद करिए, सोचिएगा, मुझे बताइएगा। प्रॉब्लम नंबर थर्ड क्या पढ़ो भाई, राशिद हसन पढ़िए। Give an example of binary operation which is associative but not commutative. B है commutative but not associative, and C है neither commutative nor associative. इन तीनों के एक एक एग्जाम्पल बनाएंगे आप सब लोग, ठीक है, जितने स्टूडेंट्स हैं सबके एग्जाम्पल अलग होने चाहिए। जी सर। हाँ, ये सोचना, ठीक है, सोचोगे समझ में आ जाएगा आराम से। इसमें आप मैट्रिक्स प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, देखो अगर मैं सेट ले लूं करेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस, है ना, तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट को भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी इज नॉट इक्वल टू, अगर दो मैट्रिक्स ए बी हैं तो ए बी का प्रोडक्ट बी ए के इक्वल होता है क्या? नहीं सर, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, नहीं हो सकता। हाँ, तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, है ना, बट मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, है ना। यस सर। तो आप मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं इसमें, बाकी जो मैंने बताए हैं ये सब सोच सकते हो, वेक्टर प्रोडक्ट सोच सकते हैं, जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है आपका, तो ये आप एग्जाम्पल सोचेंगे, ये आपको बनाने हैं खुद एग्जाम्पल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? तो भाई अब्दुल वासिद, इमरान नजीर, यस सर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। गुड, चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स, है ना। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स क्या है कि लाइक सपोज यू हैव सम सेट एंड यू हैव सम ऑपरेशन, तो आ सेट विद सर्टेन ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन,
है ना, इट विल गिव यू वन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अब वो अलग अलग नाम होते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स के, है ना, वो आई विल बी डिस्कसिंग हियर कि व्हाट आर द अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स। तो इन्होंने फर्स्ट स्ट्रक्चर फील्ड लिया है एक्चुअली, है ना, फील्ड, बट मैं फील्ड से स्टार्ट नहीं करके आई विल स्टार्ट इन द रिवर्स वे। पहले मैं छोटे ऑपरेशन लूंगा, फिर आई विल बी इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑपरेशंस और वी विल बी कंस्ट्रक्टिंग न्यू अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। जैसे लेट अस टेक फर्स्टली so I am taking some set, suppose I am taking a set, suppose I am taking a G is some non-empty set, है ना, and I am taking an operation addition suppose। तो अब G आपके पास सेट है, ये G R हो सकता है, N हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने इसे नंबर दे दिए, जनरल टर्म G यूज करा है, ओके, एंड प्लस इज द ऑपरेशन। तो ये नोटेशन होती है ब्रैकेट में लिख के कि सेट G विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। तो नाउ सपोज a set it has closure property, है ना, first let G be a non-empty set। first thing is it should be non-empty। non-empty होना क्यों जरूरी है भाई, क्यों, why we need not empty? non-empty का मतलब क्या होता है? सर उसके अंदर कुछ सर रहेगा तब उसमें ना एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए सर। होते ही नहीं है एलिमेंट्स। मतलब कम से कम उसके अंदर एक एलिमेंट होना चाहिए, है ना। यस सर। यस सर। अगर नो एक एलिमेंट हुआ तभी तो आप उसके अंदर कुछ ऑपरेशन लगा के चेक कर सकते हो। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो फिर तो उसके अंदर ट्रिवियल चीज है सारी, फिर तो आप उसमें क्या चेक करोगे जब कुछ है ही नहीं तो, है ना। तो इसलिए Yes, sir. कम से कम एक एलिमेंट होना जरूरी है, एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड बी देयर। इसलिए हम लिखते हैं कि द सेट शुड बी नॉन एम्प्टी, है ना। अच्छा चलो, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इफ आई एम टेकिंग नाउ, फर्स्ट प्रॉपर्टी आई एम टेकिंग क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, मैंने बताई थी आपको जब बाइनरी ऑपरेशन बता रहा था, क्या थी, if a comma b belongs to G then a plus b also Yes. belongs to G, जी है ना। ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है, यही आपका बाइनरी ऑपरेशन भी है। तो या तो आप ये कह दें कि लेट G बी आर नॉन एंटी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन, है ना, या आप ये क्लोजर प्रॉपर्टी, दोनों बात एक ही है, दो आप एक साथ नहीं लिखेंगे कि लेट G is a set with binary operation and has closure property, it is a wrong statement। either you should say कि let G be a non empty set with binary operation addition या कुछ भी हो, या आप ये कहेंगे कि let G be a non empty set with closure property। ये एक ही बात होती है, ये आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, अगर याद हो तो, है ना। यस सर बताया था। हाँ, तो सपोज ये फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी a belongs to G then a plus G belongs to G। second property I am taking associative, it means what, एसोसिएटिव का मतलब वही जो मैंने बताया कि अगर मैं ऑपरेशन मान लीजिए प्लस ले रहा हूँ, या इसको मैं जनरल ले लूँ, चलिए जनरल ले लूँ, इसको एस्ट्रिक ले लेते हैं तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अब ये कुछ भी हो सकता है आपका इन जनरल। नाउ व्हाट विल हैपन, a स्टार दिस शुड इक्वल टू, है ना। अगर सिर्फ ये दो प्रॉपर्टी हैं किसी सेट के अंदर तो इस सेट को हम कहते हैं सेमी ग्रुप, है ना। मैं नाम बता दे रहा हूँ, हालांकि हम इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए बिकॉज यू आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट। तो सेमी ग्रुप, आप एमएससी में यहाँ पे पूरा एक पेपर है सेमी ग्रुप थ्योरी का, तो हो सकता है आप लोग एमएससी में जाए वहां पढ़ें। तो सेमी ग्रुप बोलते हैं, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। तो इसका मतलब कि कोई चीज पूरी होगी उसका हाफ है ये, क्यों। यस सर। हाँ, तो अभी इसको हम सेमी ग्रुप बोल देंगे कि इफ एनी नॉन एम्प्टी सेट हैविंग दीज टू प्रॉपर्टीज, कि ये क्लोजर होना चाहिए और एसोसिएटिविटी होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं सेमी ग्रुप। क्लियर है। अब मैं इसके आगे एक प्रॉपर्टी और लिखता हूँ, थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी।
existence of identity. ओके, लेस देन अ मिनट बचा है भाई, मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, सब लोग रहेंगे स्टूडेंट्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है? फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट E belongs to G such that A star E is equal to E star A is equal to A. It is called existence of identity. यानी उस सेट के अंदर G के अंदर एक आइडेंटिटी ऐसी हो, एक एलिमेंट ऐसा हो कि जब मैं उसको किसी भी ऑपरेट करूं किसी भी एलिमेंट पे, इट विल गिव यू द सेम एलिमेंट। समझ में आई बात? यस सर। इट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट यूनिक होना चाहिए। हाँ, ये अभी मैं प्रूव करूंगा आगे थ्योरम कि आइडेंटिटी इज ऑलवेज यूनिक, ये हम प्रूव करेंगे, है ना। तो जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लीजिए, आप ऑपरेशन एडिशन ले लीजिए, उसमें आइडेंटिटी क्या होगी? ऐसा कौन सा नंबर है? व्हाट इज द नंबर? जीरो। जीरो। वन। वन कैसे हो जाएगा? वन सर, वन। जीरो। सर जीरो। अरे विद रेस्पेक्ट टू एडिशन? हाँ सर, एडिशन में जीरो होगा सर, मल्टीप्लिकेशन होगा में ना? वन होगा। मल्टीप्लिकेशन, हाँ, Zero इसका होगा। यस भाई, आपको पता है 2 + 0 इज इक्वल टू 2, है ना। तो और लेकिन 2 + 1 तो 3 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिटी डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन। विद रेस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी इज 0 एंड विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इज 1, है ना।